Hello students, welcome to Mathematics of Class 4, Chapter 13 Fields and Fences. This is the revision of this chapter. You already learned before it, now let's do the revision. Okay, so students, you already learned it about the fields and fences. So what is fields in this chapter? Fields means in this chapter we are talking about the area, and fences means perimeter, boundary. Okay, so now let's more understand about the perimeter and area. So what is perimeter? Perimeters, how can you find it? When you do the addition, means sum of all the sides of figure. When you do the additions of all the sides of any figure, so you get the perimeter. Okay, पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री होता है और उसकी बाउंड्री की हर एक साइड्स का मेजरमेंट का आप टोटल करोगे, यू गेट द पेरीमीटर. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द एरिया. व्हाट इज एरिया? द सरफेस ऑक्यूपाइड बाय अ शेप. यानी कोई जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई शेप होता है, उसका जो सरफेस ऑक्यूपाई करता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड द एरिया. ओके, नाउ एरिया इज रिटन इन स्क्वायर यूनिट. एरिया ऑलवेज किस में होता है? स्क्वायर यूनिट्स में होता है. That is, when you find the area, you have to write square centimeter, square meter or square kilometer. Okay, now next one is approximate. What is approximate? Not completely accurate or exact but close to actual. That means when you find the area, if the one box is more than half, okay, so that time you are considered as a 1. So that is called the approximate. That means it's not the exact or accurate but is close to actual. Understood students? Now see this figure. So this figure rectangle shape is given. So can you see this black color outline? That shows the boundary. That means the perimeter. Okay, if you want to find the perimeter, you have to do the addition of this all the four sides measurement. Okay, and see this inside part, that is the area. That means surface occupied by a shape. यानी ये शेप का जो भी सरफेस है उसे हम क्या कहेंगे? एरिया. क्लियर? व्हाट इज एरिया एंड पेरीमीटर? कैसे फाइंड करना है वो समझ में आ गया आपको? एरिया किसे कहते हैं और पेरीमीटर कैसे करते हैं और किसे फाइंड करना है. ठीक है, लेट्स सी विद एन एग्जांपल. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर. आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है. सी हियर, दिस इज योर नोटबुक एक्सरसाइज that I am going to explain it. Okay, so this is the first example. See, this is again rectangular shape. उसकी this side measurement, यानी हमें perimeter find करना है. First of all you keep in your mind, perimeter find करना है. That means we need the measurement of all the sides. जो भी फिगर दिया है उसके हर एक साइड का मेजरमेंट हमें चाहिए. Then we can find the perimeter. Okay, so see here, rectangle 4 sides, 1 2 3 and 4. Here all the side measurement is given. This side 8 centimeter, this side 3 centimeter, this side 8 and this side 3 centimeter. Right, सो आपको पता चल गया कि पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास जो भी फिगर है उसका हमें हर एक साइज़ का मेजरमेंट चाहिए. देन वी कैन फाइंड द पेरीमीटर. सो हमारे पास यहाँ पे ऑल द 4 साइड मेजरमेंट्स हियर. सो व्हाट टू डू फॉर फाइंडिंग पेरीमीटर? वी हैव टू डू द एडिशंस ऑफ ऑल द 4 साइज मेजरमेंट. सी हियर, देन पेरीमीटर की स्पेलिंग लिखनी है. देन यू हैव टू डू द एडिशन. 8 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर. सो अब आप चारों चार साइड का टोटल करोगे, सो योर आंसर विल कम 22 सेंटीमीटर. यानी व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर? दैट इज 22 सेंटीमीटर. सपोज योर गार्डन बाउंड्री इज 22 centimeter. You have to fencing this, so you have to do the addition of all this side like this way and you get the measurement. Understood students? Now see the next one. Here the triangular shape is given. Here the triangle, how many sides? 1 2 and 3. So this side is 7, this side 12 and this side 14 centimeter. So all the side measurements we have, so we have to just do the additions. So 7 centimeter plus 12 centimeter plus 14 centimeter. So उसका आंसर क्या आएगा? 33 सेंटीमीटर. ओके, पर स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट इट इन प्रॉपर वे. कैसे लिखना है आपको? पेरीमीटर लिखना है, देन इज इक्वल टू करके चारों चार साइड का एडिशन दिखाना है विद द यूनिट्स. जो भी अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर करके, मीटर है तो मीटर करके, यूनिट्स का एडिशन करने के बाद आंसर में भी आपको यूनिट के साथ लिखना है. ठीक है, अगर डायरेक्ट आप ओनली 22 लिख दोगे, दैट विल नॉट बी करेक्ट. ओके, तो वो ध्यान रखना है हाउ टू राइट एज अ आंसर. Okay, let's see the third example.
So our third example is this. See here, the different sides are given. 1, 2, 3. Okay, 4, this 5, this 6, 7 and 8. Okay, so each side measurement is given. Here also we have to find the perimeter. यहाँ पे भी perimeter ही find करना है. तो यहाँ पे ये साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर है. ये साइड का मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर है. दिस साइड 3 सेंटीमीटर, दिस साइड 4, दिस साइड का मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर, दिस ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, दिस 2 सेंटीमीटर एंड दिस 4 सेंटीमीटर. यानी आपको कोई भी साइड छूटनी नहीं चाहिए. अगर आपको पैरीमीटर फाइंड करना है तो जो भी फिगर है उसकी हर एक साइड का टोटल करना है. ओके, और देन पैरीमीटर लिखना है एंड देन यू हैव टू डू द 10 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर करके एग्जैक्टली लिखना है. आपको याद रखना है कि कोई भी मेजरमेंट बीच में से स्किप ना हो जाए. अगर वो हो जाएगा तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. सो व्हाट आंसर विल कम ऑफ दिस फिगर, दैट इज 30 सेंटीमीटर. समझ में आया स्टूडेंट्स हाउ टू फाइंड द पैरीमीटर? ईजी है ना. तो क्या याद रखना है, पैरीमीटर फाइंड करना है मीन्स हमारे पास जो भी बाउंड्री है उसकी हर एक साइड का एडिशन करना है. और एडिशन करने के लिए आपको ये प्रॉपर वे से आंसर लिखना है. डायरेक्टली आंसर लिख दोगे यू विल नॉट गेट द मार्क्स. क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स सी द नेक्स्ट वन. सी हियर आवर सेकंड क्वेश्चन. फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल विथ. यहाँ पे आपको रेक्टेंगल का पैरीमीटर फाइंड करना है, वो बताया है. See, our question is that length is equal to 18 centimeter and breadth is equal to 10 centimeter. Okay, so हमें perimeter find करना है. Okay, और rectangle की कितनी साइड होती है? 4 साइड होती है. आपको पता है, see this is the rectangle shape. उसकी 1, 2, 3 और 4 साइड होती है. पर हमारे पास मेजरमेंट 2 ही है. लेंथ 18 और ब्रेथ 10. लेंथ यानी क्या, आपका जो भी शेप हो उसका लॉन्गर पार्ट है उसे हम लेंथ कहेंगे. और ब्रेथ यानी विथ यानी उसकी जो थिकनेस होती है उसे ब्रेथ कहेंगे. ठीक है, यानी लेंथ है 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर. हमारे पास 2 ही मेजरमेंट है. व्हाट अबाउट अदर 2 साइड, ये और ये बाकी की 2 साइड का मेजरमेंट कहाँ से आएगा? तो स्टूडेंट्स एज यू नो डैट रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल. यानी अगर मैं रेक्टेंगुलर कोई भी शेप लेती हूँ, उसका अगर ये साइड 18 है तो उसका अपोजिट साइड ये होगा, डैट शुड बी ऑल्सो 18, वो 18 ही होगा. ओके, सो अगर ये साइड 10 है तो दिस साइड ऑल्सो विल बी 10. तो आपको मिल गया चारों साइड का मेजरमेंट. ओके, अगर आपको 2 साइड दिया है तो आपको अदर साइड अपने आप से लिखना है एंड देन यू फाइंड द पैरीमीटर. ओके, नाउ देन पैरीमीटर करके लिखना है. देन इज इक्वल टू एड ऑल द 4 साइड्स. यूनिट्स के साथ लिखना है. अगर आपने 18 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 10 लिख दिया और आपने डायरेक्ट लिखा 56, यू विल नॉट गेट द मार्क्स. 18 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर लिखना है. योर आंसर विल कम 56 सेंटीमीटर. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? डोंट डू मिस्टेक. नाउ नेक्स्ट वन इज लेंथ इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 43 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिया है लेंथ कितना है, 35 है एंड ब्रेथ 43 है. लेंथ यानी पता चल गया ना, जो लॉन्गर पार्ट होता है वो उसे लेंथ कहते हैं. और ब्रेथ यानी थिकनेस, उसकी जो थिकनेस होती है, विथ होती है, उसे ब्रेथ कहते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स सी हियर 35 एंड 43 का आपको एडिशंस करना है. ठीक, यहाँ पे 2 ही साइड दी गई है तो अगेन अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो ये 35 है तो दिस ऑल्सो विल बी 35, दिस 43 तो दिस ऑल्सो विल बी 43. अंडरस्टूड स्टूडेंट? सो दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस फिगर. ये आपको फिगर समझाने के लिए ड्रॉ किया गया है, जिससे आपको आइडिया आ जाए कि लेंथ और ब्रेथ कहाँ पे लिखनी है. नाउ यू हैव टू डू द एडिशंस पैरीमीटर करके. यू हैव टू एड ऑल दिस नंबर्स सो यू गेट द आंसर 156 सेंटीमीटर. क्लियर स्टूडेंट्स हाउ टू फाइंड इट? अगर आपको 2 मेजरमेंट दिया है रेक्टेंगल का तो बाकी 2 साइड अपने आप लिख सकते हो एंड यू कैन फाइंड द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल शेप. लेट्स सी द थर्ड एग्जाम्पल. सो अवर थर्ड एग्जाम्पल इज दिस ब्रेथ 7 मीटर एंड लेंथ 11 मीटर. अब यहाँ पे देखो पहले दिया है ब्रेथ एंड देन दिया है लेंथ. तो ब्रेथ यानी विथ यानी आपको 7 मीटर यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नहीं, बिकॉज दिस इज द लेंथ. और लेंथ कितना है, 11 मीटर. ओके, सबको ध्यान से पढ़ के लिखना है कि ब्रेथ कहाँ है. सो दैट हैज़ टू राइट ऑन दिस साइड एंड लेंथ है, दैट मीन्स दिस साइड. ठीक है, और यूनिट्स आर इन मीटर तो आपको उसके पीछे m लगा के लिखना है. ठीक है, अगेन 11 मीटर हियर, सो दिस ऑल्सो विल बी 11, दिस 7, तो दिस ऑल्सो विल बी 7 मीटर.
ओके, गेट ऑल द 4 साइड्स, अरे अपनी 4 साइड है तो चलो 4 मिल गया, अब उसका एडिशन करेंगे. सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 11 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 11 मीटर प्लस 7 मीटर. सो योर आंसर विल बी 36 meter. Understood students how to find the perimeter of rectangle? Let's see the next one. So our next question is that find the length of the boundary and a perimeter of the square whose side is given below. अब हमें स्क्वायर की पेरीमीटर फाइंड करनी है, स्क्वायर की बाउंड्री फाइंड करनी है. सो सी हियर व्हाट क्वेश्चन इज गिवन 12 सेंटीमीटर. ओनली वन मेजरमेंट इज गिवन 12 सेंटीमीटर. हाउ कैन वी फाइंड? सी दिस इज द स्क्वायर शेप एंड स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स. स्क्वायर की 4 साइड होती है ना, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 साइड्स है स्क्वायर की. तो हमें मेजरमेंट तो एक ही साइड का दिया है. सो व्हाट अबाउट अदर साइड्स, बाकी क्या साइड्स का क्या करेंगे? सो स्टूडेंट्स, स्क्वायर हैज़ 4 इक्वल साइड्स, यानी स्क्वायर की 4 इक्वल साइड्स होती है, यानी एक साइड का मेजरमेंट 12 है, यानी बाकी हर एक साइड का मेजरमेंट भी 12 ही है. ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बाकी साइड का मेजरमेंट तो दिया ही नहीं है. तो स्क्वायर मीन्स वन साइड इज गिवन, दैट मीन्स इट्स ऑल द साइड्स इक्वल, मीन्स हर एक साइड का मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर ही होगा. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स हाउ टू फाइंड इट? ओके, सो नाउ पेरीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4. अब यहाँ पे चारों 4 साइड इक्वल है तो आप मल्टीप्लाई 4 कर सकते हो. अदरवाइज मल्टीप्लाई 4 समझ में नहीं आता, यू डू द एडिशन. 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर एंड प्लस 12 सेंटीमीटर भी आप कर सकते हो. ठीक है, बट दिस इज द शॉर्टकट वे एंड यू कैन डू ईजी वे ऑल्सो. 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 करोगे, सो आंसर विल कम 48 सेंटीमीटर. ओके, यहाँ पे भी आपको यूनिट के साथ प्रॉपर वे से आंसर लिखनी है. ओके, और फिगर्स ड्रॉ करके करोगे, दैट इज़ मोर बेटर वे टू गेट द आंसर. ओके, नाउ एंड ड्रॉ द फिगर विद द पेंसिल ओनली. नाउ 30 सेंटीमीटर. सो 30 सेंटीमीटर में हमें एक ही मेजरमेंट है, द सेम वे द ऑल द साइज आर इक्वल इन स्क्वायर. सो हमें हर एक साइड में 30 सेंटीमीटर लिख देना है. नाउ गेट द पेरीमीटर, 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 करेंगे, सो वी गेट द आंसर 120 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, let's see the next one. So next one is 14 meter. Here also we have to find the boundary of square. So one side is 14, so same as other side also 14. So क्या करोगे? perimeter is equal to 14 meter multiply 4. Only 14 multiply 4 करके only 56 लिखोगे. I will not give the marks. Okay, so unit के साथ आंसर लिखनी है. So answer will come 56 meter. मीटर है तो मीटर लिखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ मीटर दिया और आंसर आप सेंटीमीटर में लिखो. टेक केयर अबाउट द यूनिट्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड फिगर्स एज्यूमिंग द साइड ऑफ ई स्मॉल स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आपको मैंने पूछा है कि आपको यहाँ पे जो कलर्ड फिगर है उसका एरिया फाइंड करना है, और यहाँ पे जो स्क्वायर बॉक्स है वो हमें एज्यूम करना है कि वो 1 सेंटीमीटर का ही है. राइट, दिस एक्सरसाइज आई हैव गिवन इन द नोटबुक. सो स्टूडेंट्स, आपको एक मैथ्स का ग्रीड पेपर होता है, जैसे ये बॉक्स पेपर है, ग्रीड पेपर है, वैसा एक पेपर लेना है और आपको ऐसे बॉक्स काउंट करके अंदर ड्रॉ करके कलर करके देन यू हैव टू राइट द आंसर्स. ओनली दिस आंसर you don't have to write in the notebook. 1, 2 and this 3 has to write in the notebook. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, क्या करना है समझ में आया? आपकी जो ग्रेड बुक होगी, यानी 3rd स्टैंडर्ड में आपके पास जो भी कोई ग्रेड बुक होगी मैथ्स की जो पहले आप यूज़ करते थे, उसमें से एक पेज टेयर करके आपकी रेगुलर बुक में पेस्ट कर लोगे एंड देन यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर्स. ठीक है, यू हैव टू डोंट ड्रॉ दिस फिगर. क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर. सो फर्स्ट यहाँ पे जो कलर्ड फिगर है यानी इसका एरिया हमें फाइंड करना है. हियर दिस वन एंड दिस वन, यानी जो कलर्ड फिगर है उसका एरिया फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट वन, सो हमने यहाँ पे बता दिया है कि एज्यूमिंग साइड ऑफ द ई स्मॉल स्क्वायर इज़ 1 सेंटीमीटर, यानी एक स्क्वायर है उसकी मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर है. सो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 कितनी रोज है? 1 2 3 एंड 4. तो 6 4 ज़ा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा. सो 24 बॉक्सेज है कलर्ड, और यूनिट पीछे क्या लिखना है? स्क्वायर सेंटीमीटर. ये अगर आपने स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं लिखा सो यू विल नॉट गेट द मार्क्स. यहाँ पे क्यों सेंटीमीटर लिख रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे बताया है कि इसका मेजरमेंट समझना है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है. दैट्स वाई वी राइट द आंसर इन सेंटीमीटर. ओके,
Let's see the second one, students, this answer. So how many square boxes are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and this one and this one is half only. ओके तो मैंने आपको क्या रूल बताया था, अगर स्क्वायर बॉक्स हाफ कवर कर रहा है, फिगर हाफ कवर कर रहा है, तो 2 हाफ मिलकर आपको क्या काउंट करना है? 1. तो कितने हो जाएंगे? 7 स्क्वायर सेंटीमीटर. समझ में आ गया आपको? 4 + 2 6 and this 2 half will make what? So 7 square centimeter the area of this figure. Clear, students? So let's see the next one. Students, see this is the irregular shape. तो हमें यहाँ पे कैसे एरिया फाइंड करना है? देखो स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था, अगर जो पहले फुल कवर्ड एरिया है, यानी फुल जो फिगर में आ जाता है कलर्ड एरिया में, उसमें आप नंबर लिख लो. एरिया फाइंड करो तो ऑलवेज यू राइट द नंबर इनसाइड, सो इट्स मोर इजी फॉर यू. सो हम यहाँ पे देखेंगे, देखो ये फुल्ली कवर्ड है. 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8 9. देखो ये वाला जो है वो मोर देन हाफ कवर्ड हो रहा है. ये जो स्क्वायर बॉक्स है उसमें वो मोर देन हाफ कवर हो रहा है, राइट? तो उसे हमें 1 काउंट करना है. सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस फिगर? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो क्या है रूल याद रखना है, अगर 2 हाफ है तो उसको 1 कंसिडर करके काउंट करना है. 2 हाफ विल मेक 1. और जहाँ पे आपका एरिया यानी आपका जो स्क्वायर है वो मोर देन हाफ यानी हाफ से ज़्यादा कवर हो रहा है, तो उसको 1 काउंट कर लेना है. ठीक है? सो ओनली 3 रूल्स. अगर कंप्लीट है तो उसको जस्ट काउंट करो और लिखो, और यूनिट्स के साथ लिखो. स्क्वायर लिखने के बाद यूनिट्स लिखना है. ओनली 24 सेंटीमीटर लिखोगे, दैट विल बी ऑल्सो रॉन्ग. अगर एरिया है तो कंपलसरी स्क्वायर लिखना है, और उसके बाद वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, अगर ऊपर मीटर दिया है यहाँ पे कुछ तो मीटर लिखना है. ठीक है? वो गलती नहीं होनी चाहिए. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अगर 2 हाफ है यानी दोनों स्क्वायर जो है वो हाफ कवर हो रहे हैं, तो वो 2 हाफ मिलके 1 हो जाएगा. और व्हाट इज़ द थर्ड रूल? अगर वो मोर देन हाफ पार्ट कवर कर रहा है स्क्वायर का, तो उसको 1 काउंट कर लो. और सी दिस इज़ द लेस देन हाफ. देखो बहुत छोटा पार्ट कवर हो रहा है, यहाँ पे भी देखो, हियर ऑल्सो, तो उसको हमें काउंट करना ही नहीं है. वी डोंट हैव टू काउंट द पार्ट विच हैज़ कवर्ड लेस देन हाफ पोर्शंस. क्लियर स्टूडेंट्स? तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया हाउ टू काउंट द एरिया बॉक्सेस, कैसे एरिया फाइंड करने के लिए बॉक्स काउंट करने हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. सी हियर, फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द नंबर विच इज़ द फुल्ली कवर्ड वन. जो होल स्क्वायर है उसमें नंबर लिखते जाओ. तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 and 6. Okay, now let's see this. This is half, so 7. This 2 half, 8, and this 2 half, 9. So the area of this figure is 9 square centimeter. क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? एरिया के 3 रूल्स है. अगर टोटली स्क्वायर है जस्ट काउंट करो और जस्ट राइट द नंबर. ओके, जहाँ पे हाफ है तो 2 हाफ मिलके 1 काउंट करो एंड राइट. और जहाँ पे मोर देन हाफ, ऐसे जैसे इरेगुलर फिगर है या कोई फिगर है जिसमें मोर देन हाफ कवर हो रहा है, तो उसको 1 काउंट करो. और जहाँ पे लेस देन हाफ यानी हाफ से भी कम पोर्शन कवर हो रहा है, उसको काउंट ही नहीं करना है. क्लियर? So keep in this mind rule. This is very easy to find the area. Understood students? So I hope you have understood which I explain you. So thank you students. Complete your CW work on your regular basis. अब आपकी एग्ज़ाम आ रही है, so you revise more and more and do the more practice with written work. And okay, thank you.